Hello students. In the last lecture children we have started with the price policy in agricultural sector. We saw what exactly is the need for price policy and what are the features of price policy basically that we observe in a country like India's agricultural sector. Children, for today we are going to focus on what is the exact price policy of the government of India and how is it implemented. So while formulating and implementing a very effective and a remunerative price policy for the agricultural sector, there are certain factors which are very important, we say, while considering the price levels. So, children, we have got the Committee on Agricultural Cost and Pricing. क्या नाम है? The Committee on Agricultural Cost and Pricing, which tries to determine appropriate level of prices. Okay. Now, while fixing appropriate prices, it is very necessary that the Committee on Agricultural Cost and Pricing considers the following factors. Now, what are those factors? The first one, which says that we need to consider the cost of production. जब भी आपको अगर किसी commodity का price fix करना है बच्चों लोग, तो automatically we need to understand that we should understand what is the cost of production. In any particular sector, children, whenever we fix the price of a particular commodity, we generally consider what are the cost factors. Cost को consider करने के बाद उसके ऊपर हम लोग एक profit का margin add करके then we can arrive at the final prices of the agricultural products. अच्छा, the second factor, children, is what is called a change in input prices. Cost of production का एक बहुत important determinant होता है बच्चों लोग, what are called as inputs. Inputs could be anything related to the raw material that we use. Acha, now when we talk about agriculture, we don't have raw material. We could have the seeds, fertilizers, water supply, children, electricity. Along with that, the pesticides and the insecticides that are used. Acha, ये सब के prices बच्चों लोग over the years will keep on changing. Now, based on the changes in these prices, children, we also need to change the prices of agricultural produce to be sold in the agricultural markets. Acha. But at the same time, children, we also need to focus on what are the market prices. कि market में फिलहाल क्या prices चल रहे हैं उसको भी हम लोगों को consider करना पड़ता है. मतलब we should be able to provide something almost equal if not less than the market prices. जैसे कि अगर राइस का चलो मार्केट प्राइस है 30 रुपीज, सो वी नीड टू बी समवेयर क्लोज टू दैट ना. We should not be paying anything less than the market price, children, because then the farmer is going to sell to the market, and if they sell it's okay, but we cannot keep the prices that low. अच्छा, प्राइस को डिटरमिन करने वाला चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई. चलो मार्केट में जैसे कि हम लोग देखते हैं ऑनियंस का शॉर्टेज हो गया तो ऑनियंस का प्राइस बढ़ जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि लाइक किसी भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं. सो वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर हम लोग को पता है कि उसका डिमांड ज्यादा है तो हम लोग उसका प्राइस चलो थोड़ा सा ज्यादा फिक्स कर सकते हैं. अच्छा, लेकिन किसी प्रोडक्ट का सप्लाई चलो ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली द प्राइसेस विल रन डाउन. सो डिमांड एंड सप्लाई चिल्ड्रन विल indirectly determine what is the price of a particular commodity. फिर आते हैं बच्चों लोग रिस्क फैक्टर्स. बच्चों लोग रिस्क के हिसाब से जब भी आप कोई क्रॉप उगाने के लिए जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ वी आर अवेयर कि लाइक व्हेन यू ग्रो समथिंग लाइक शुगर केन, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है बच्चों लोग. कभी फ्लड्स आ गए तो प्रॉब्लम, कभी अगर कोई पेस्ट वगैरह आ गए बच्चों लोग तो भी प्रॉब्लम. तो शुगर फैक्ट्री चिल्ड्रन रिस्क फैक्टर के हिसाब से प्राइसेस फिक्स करती है ना. यस, जहां पे आपको ज्यादा रिस्क दिखेगा वहां पे आपको फार्मर्स को ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे. जहां पे रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी लेस देन यू विल बी एबल टू पे लेसर प्राइसेस फॉर दोस प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन. Then we also need to consider what will be the effect of the rise in prices on industrial cost. आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे चलो हम लोग जो यूज करते हैं वो इनपुट्स करके यूज किए जाएंगे या फिर रॉ मटेरियल करके यूज किए जाएंगे फॉर प्रोसेसिंग इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. अगर हम लोग फार्मर्स को ज्यादा प्राइस प्रॉमिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस गुड्स विल बिकम कॉस्टली इन द मार्केट.
तो इंडस्ट्रीज का बच्चों लोग इनपुट कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बच्चों लोग फिर ये गुड्स महंगे होंगे विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट द कंज्यूमर्स सो इट्स पीपल अगेन राइट तो ये भी हम लोग को सोचना पड़ता है तो प्राइस फिक्स करते वक्त चिल्ड्रन वी नीड टू थिंक कि लाइक ये इंडस्ट्रीज के कॉस्ट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा देन इट्स ऑल्सो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग गवर्नमेंट ने एक आध चीज के लिए एक अच्छा प्राइस प्रॉमिस कर दिया कि चलो हम लोग ऑनियन के लिए 20 रुपीज पे कर दे फार्मर को तो चलो बात क्या होती है कि लाइक मार्केट में फिर ऑनियंस विल बिकम कॉस्टली और कॉमन पीपल का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो ऑटोमेटिकली महंगा होना चालू हो जाएगा इट्स ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी चिल्ड्रन इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल क्या होता है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा in the sense ki like if there are higher prices for agriculture produced children then there could be the situation of inflation in the country मतलब महंगाई एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन के ऊपर भी हमारे एग्रीकल्चरल प्राइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है चिल्ड्रन दैट मीन्स आवर प्राइसेस नीड टू बी एट पार विद द इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन अच्छा फिर पैरिटी बिटवीन डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ना अलग अलग प्राइसेस का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है चिल्ड्रन उसको भी ध्यान रखना पड़ता है कंपेयर करना पड़ता है जैसे कि वी ऑल्सो हैव द इनपुट एंड आउटपुट प्राइस and also the parity between the prices received by the farmer and paid by the consumer कंज्यूमर क्या प्राइस पे करता है बच्चों लोग और फार्मर को उसमें से क्या मिलता है हाँ तो उसमें भी बच्चों लोग ज्यादा गैप हम लोगों को नहीं चाहिए नहीं तो फार्मर्स विल बी एट अ लॉस कंज्यूमर्स विल आल्सो बी एट अ लॉस एंड ट्रेंड ऑफ प्राइस लेवल्स इन द पास्ट नाउ दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि पास्ट में प्राइसेस का बिहेवियर क्या था ये भी सोच के फिर गवर्नमेंट कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स करती है मार्केट में ओके यस नाउ चिल्ड्रन की ये था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस वी कैन से अभी डिटर्मिनेंट्स के बाद में चिल्ड्रन then we arrive at a question what are called as the announcement of administered prices first of all children we need to understand what are administered prices होते क्या है so children administered prices are nothing but the prices which are announced by the government जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बच्चों लोग गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं वी कॉल देम एज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस नाउ इट्स फॉर श्योर चिल्ड्रन दैट एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस विल बी अनाउंस्ड बाय नन अदर देन द गवर्नमेंट तो बच्चों लोग गवर्नमेंट ये एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है सो हियर वी आर चिल्ड्रन गवर्नमेंट विल अनाउंस द थ्री टाइप्स ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस उसमें से जो पहला वाला आता है बच्चों लोग इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर एक होता है बच्चों लोग प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड द अदर वन चिल्ड्रन इट्स कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कौन कौन से प्राइसेस आ गए देखो बच्चों लोग इसमें सबसे पहला कौन सा बोला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूसरा कौन सा होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस और तीसरा होता है स्टैट्यूटरी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बच्चों इसके आगे हम लोग एमएसपी करके रिफर करेंगे so let's go for the first one children what exactly is the meaning of minimum support price बच्चों लोग यहाँ पे गवर्नमेंट गिव्स अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन टू द कॉस्ट फैक्टर मतलब खर्चा कितना हुआ है फार्मर को एंड द कॉस्ट फैक्टर चिल्ड्रन या फिर कॉस्ट का जो कंसेप्ट है इट विल कवर ऑल द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस जहां पे उसने कल्टीवेशन से शुरू होता है बच्चों लोग अच्छा हम लोग इनपुट का वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं इनपुट का लेकिन इम्प्यूटेड वैल्यू दैट मीन्स बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं अपने खेत में से जो प्रोड्यूस होता है उसको अगले साल हम लोग एज ए इनपुट यूज करते हैं ना तो उसको आपने परचेस नहीं किया तो सवाल ये आता है कि लाइक उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे तो मार्केट में उसका जो जनरल प्राइस होता है उसको आप कंसिडर कर सकते हो अच्छा देन द इम्पोर्टेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज बाय CACP ये वर्ड आपको बार बार दिखेगा चिल्ड्रन दैट इज कमिटी ऑन कॉस्ट एंड एग्रीकल्चरल कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग इसमें दो फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं चिल्ड्रन वी गॉट वन C2 एंड देन वी गॉट C3 अभी C2 और C3 होता क्या है तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू चिल्ड्रन C2 जो है इट कवर्स ऑल द एक्चुअल एक्सपेंसेस जो फार्मर ने कैश में पे किए
और काइंड में भी हो सकता है। इनकर्ड इन प्रोडक्शन बाय एक्चुअल ओनर, मतलब ओनर ने एकाध प्रोडक्ट को, एकाध क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों कितना एक्चुअल खर्चा किया कैश में और काइंड में। काइंड में बच्चों जैसे कि आपने, आपके खेत में कोई काम करने के लिए आया था, उसने आपने कुछ अनाज दिया, तो अनाज का वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, इम्प्यूटेड कॉस्ट। अच्छा, प्लस रेंट फॉर लीज लैंड, अगर आपने भाड़े पे जमीन लिया तो उसका भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, रेंट का। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, फैमिली लेबर मीन्स चिल्ड्रन, पीपल ऑफ द फैमिली वर्किंग ऑन दी ओन फार्म, खुद के फार्म में जब खुद के घर के लोग काम करते तो उनको हम लोग पे तो नहीं करते, लेकिन अगर वही लोग किसी दूसरे के खेत में जाके काम करते तो उसका पैसा आता था। या फिर अगर बाहर का कोई आपकी जगह पे आके काम करता था, उसको पैसा देना पड़ता था, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे। प्लस इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ओन्ड कैपिटल एसेट्स, मतलब आपके पास ट्रैक्टर है, चलो आपके पास इक्विपमेंट्स है। अच्छा, तो उसमें आपने जो पैसा डाला है, अगर आप शायद बाहर का कोई बोरो करते थे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था ना। यस, एंड द रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड नेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब क्या बच्चों लोग यहाँ पे कि आपका खुद का जमीन है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप रेंट तो पे नहीं करते रहोगे, लेकिन उसको भी हम लोग इम्प्यूट कर सकते हैं कि अगर मैं दूसरे की जमीन में खेती करता था तो मुझे कितना पे करना पड़ता था, हाउ मच वुड आई हैव टू पे, एंड अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन लैंड रेवेन्यू माइनस किया जाता है उसमें से जो रेवेन्यू मिलता है। इस सबको जब आप ऐड करोगे तो एक फॉर्मूला तैयार होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज C2। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, ऑल द एक्सपेंसेस इन कैश एंड काइंड। अच्छा, अगर आपने भाड़े पे जमीन लिया है तो उसका रेंट। अच्छा, देन चिल्ड्रन फैमिली के लोग जो खेत में काम करें उनका लेबर का कॉस्ट। अच्छा, कैपिटल एसेट पे इंटरेस्ट बच्चों लोग, आपने अपना खुद का जमीन अगर खेती के लिए यूज किया है तो उसका रेंट, इम्प्यूटेड रेंट माइनस लैंड रेवेन्यू, ये सब चीजों को मिला के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार होगा बच्चों लोग, दैट इज बेसिकली रिफर टू एज C2 बोलने का, उसको क्या बोलते हैं, C2। अच्छा, देन यू माइट आस्क मी सर व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला फॉर C3। C3 का फॉर्मूला क्या हो, तो C3 का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है बच्चों लोग। C3 इस कॉस्ट इज इक्वल टू, पहले आप C2 कैलकुलेट करोगे तो C2 में क्या क्या आता है ये हमने अभी अभी देखा है बच्चों लोग, ये पूरा पैराग्राफ बच्चों लोग फॉर्मूला आता है C2 का। उसमें आप क्या ऐड करोगे, सिर्फ 10% ऑफ कॉस्ट टू अकाउंट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेटिव टू द फार्मर्स। तो आप पूरा का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि अगर कॉस्ट 100 रुपीज होता है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, 10% प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करोगे, विच विल बी एक्टिंग लाइक अ रेम्यूनरेशन टू द फार्मर चिल्ड्रन। तो मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में फार्मर कितने में बेचेगा, 110 रुपीज, दैट मीन्स ऊपर का 10 रुपीज उसका प्रॉफिट होता है पर यूनिट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, MSP दैट्स इक्वल टू C। C इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले C2 कैलकुलेट करने का, मतलब पूरा कॉस्ट, और उसमें C3 आता है। C3 का मतलब क्या होगा, कॉस्ट के ऊपर 10%। But this was the normal formula children which was generally used for so many years by the CACP, that is Committee on Agricultural Cost and Pricing. But there is a new formula children which has come up, which is actually referred to as a Swaminathan formula. Now what exactly is this Swaminathan formula? ये होता क्या है? So let's have a look at the Swaminathan formula. Children, MS Swaminathan, उनके चेयरमैनशिप के अंडर में चलो कमिटी अपॉइंट किया गया था, दैट इज कॉल्ड एज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। नाउ दे एडवाइज्ड टू फिक्स द MSP लेवल एट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो 2006 में इस कमिटी ने एक रिपोर्ट दिया था, तो लोग क्या बोलते हैं, C2 को आप कैलकुलेट करो, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके ऊपर फार्मर को कम से कम कितना प्रॉफिट ऐड करके दोगे आप, 50%। That means these people had promised how much, 10% na. So Swaminathan committee is demanding how much, 50%. Farmers during their recent hesitation in Maharashtra demanded the implementation of Swaminathan formula. तो उनको लगता है 100 रुपीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है तो प्लस 50%, तो दैट प्रोडक्ट द फार्मर शुड बी एबल टू सेल एटलीस्ट फॉर 150 रुपीज चिल्ड्रन। That sounds a little more, but farmers deserve that children.
In other sectors, people make so much of profit, na? So why not a farmer? The Union Budget, children, of 2018-19 stated that MSP for the Rabi season will be 1.5 times of cost of production cost, but did not elaborate the cost structure. Children, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं पता है आपको. One is taken in the winter season, children, and one is taken in the rainy season. So we call them as kharif crops and rabi crops. So 1.5 times of cost of production. मतलब क्या होता है cost of production 1 है 1.5 times. That means again 50% extra profit that we want to ensure the farmers. अच्छा, अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है, कौन फिक्स करता है बच्चों इसको? गवर्नमेंट. सो द मैं बार बार पूरा नहीं बोलूंगा बच्चों इसको. वी कॉल इट एज एमएसपी विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, are in the nature of long term guarantee to enable the producer would be efforts with assurance that the prices of his produce will not be allowed to fall below the level fixed by the government, as the floor price is guaranteed by the government, and 24 major crops are covered under this scheme. तो चलो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप किसी क्रॉप के लिए इफ द गवर्नमेंट इज प्रोमिसिंग यू समथिंग लाइक कॉस्ट प्लस 50%, तो आपको मतलब आपको एक बात पता है कि आपने अगर एक क्रॉप उगाया है तो फ्यूचर में आप जब ये प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको कम से कम 50% का तो प्रॉफिट इंश्योर्ड है चिल्ड्रन, अश्योर किया जाता है. तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आता है. मेनी फार्मर्स शो सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. अदरवाइज व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन के लिए इतना मेहनत करने का फिर जब बेचने के लिए जाओ तो कितना, हाँ 10 रुपए भी नहीं छूटता है. तो सवाल ये आता है कि इतना मेहनत करने के पीछे व्हाट एग्जैक्टली इज लाइक रेम्यूनरेशन नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई दिस पीपल हैव प्रॉमिस्ड इट आउट. ठीक है. अच्छा, दो टाइप के प्राइसेस का बात कर रहे थे हम लोग बच्चों यहाँ पे. पहला कौन सा था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना. अच्छा, एक दूसरा दिया बच्चों लोग यहाँ पे, व्हाट इज रिफर टू एज अ स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एक एमएसपी होता है और एक होता है स्टैट्यूटरी एमएसपी. नाउ अर्लियर इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज, ज्यादातर हम लोग बच्चों लोग किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट जूट एंड शुगर केन. जूट मतलब पता है वो गनी बैग्स बनाए जाते हैं ना, सुतली बोलते हैं उसको. The minimum support prices had been assigned a statutory status. This made it illegal for anybody to purchase the commodity at less than the minimum support price. तो कुछ products ऐसे होते हैं बच्चों लोग कि उनका minimum support price जब fix किया जाता है, so government gives it a legal status and nobody, कोई भी बच्चों लोग इस क्रॉप को उसके मैंडेटरी प्राइस के नीचे परचेस नहीं कर सकता, एंड इट वुड बी एक्चुअली एन ऑफेंस. जैसे कि इफ द गवर्नमेंट अनाउंसेस कि शुगर केन का प्राइस 2800 रुपीज रहेगा पर टन, दैट मीन्स इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया टू चार्ज फिर टू पे मिनिमम 2800 रुपीज टू द फार्मर. और इसीलिए क्योंकि ये कंपलसरी होता है बच्चों लोग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी एमएसपी. क्या बोला था इसको? स्टैट्यूटरी एमएसपी. So in this case of sugarcane, no factory can pay a price lower than the statutory minimum. So the prices are announced in advance. और कोई भी आपको मतलब अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि लाइक 2800 रुपए का रेट रहेगा और कोई आपको 27 रुपए का रेट ऑफर कर रहा है, तो यू शुड नॉट बी सेलिंग, या फिर यू कैन टेक सम लीगल एक्शन अगेंस्ट द शुगर फैक्ट्री चिल्ड्रन, राइट. तो एक होता है एमएसपी और एक होता है मिनिमम एमएसपी विच इज अंडर स्टैट्यूटरी नेचर. स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी इतना देना ही पड़ेगा. और जो अपना तीसरा प्राइस है चिल्ड्रन, दैट इज बेसिकली रिफर टू एज अ प्रोक्योरमेंट प्राइस. क्या था ये? प्रोक्योरमेंट प्राइस. चिल्ड्रन व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस? प्रोक्योर मतलब परचेस होता है यहाँ पे. गवर्नमेंट चिल्ड्रन फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री at many times purchases lots of food grains from the farmers and the producers. So that price at which government buys, purchases, if it procures food grains for the farmers, that particular price children is known as a procurement price. Procurement prices वापस repeat कर रहा हूँ, government जो price farmer को pay करता है और उनसे food grains purchase करते हैं, तो उस price को क्या बुलाने का रहता है? Procurement price. अच्छा, अभी प्रोक्योरमेंट प्राइस चिल्ड्रन विल ऑलवेज बी लोअर देन द ओपन मार्केट प्राइस. हाँ लेकिन मिनिमम प्राइस से थोड़ा ज्यादा रहेगा.
गवर्नमेंट जितना मिनिमम प्राइस इंश्योर करती है उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन मार्केट प्राइस से थोड़ा कम। गवर्नमेंट ने 20 रुपीज प्रॉमिस किए थे, मार्केट में वो चलो 30 रुपीज का रेट चल रहा है, तो ये जो प्राइस रहेगा ना प्रोक्योरमेंट प्राइस, दैट विल बी बिटवीन 20 and 30। मिनिमम प्राइस से थोड़ा ज्यादा और ओपन मार्केट प्राइस से थोड़ा कम। दैट्स द रूल जनरली फॉलोड। और फाइनली चिल्ड्रन वी हैव गॉट अ इशू प्राइस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? Issue prices, children, are basically nothing but they are the prices at which the government will supply food grains to the people through the ration shops. Food security, we also call it as a public distribution system. Children, public distribution system is an entire network in a country through which government, in a very systematic way, procures food grains for the farmers. Now, these food grains are distributed to poor people, the below poverty line families at a particular price that is called as issue price। अलग अलग स्कीम्स आते हैं जहाँ पे गरीब लोगों को कहाँ पे फ्री में अनाज दिया जाता है, 2 रुपए 2.5 रुपए फिर 10 रुपए तक। हाँ, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इशू प्राइस। प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट ने परचेस किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था इतना पे करेंगे। स्टैट्यूटरी एमएसपी मतलब कंपल्सरीली उतना देना ही पड़ता है, उससे नीचे नहीं दे सकते। और इशू मतलब गवर्नमेंट गरीब लोगों को ये अनाज बेचती है और उनसे जो पैसा लेते हैं बच्चे लोग उसको इशू प्राइस बोलते हैं। जनरली उसमें कोई कॉस्ट नहीं होता है, बस ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का कॉस्ट इंक्लूड करके गरीब लोगों को ये अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा रहेगा, देयर इज लॉट्स ऑफ, आई माई सेल्फ वी स्टे इन अ विलेज सो आई नो per family sometimes they sell out 15 kg of wheat per month. Okay, just imagine children, 6 kg of food grains per person in the family. So if there are 5 members in the family, 4 members in the family, so just imagine children कि आपको अच्छा खासा ये अनाज मिलता है जो आप अपने अ, मतलब रोजी रोटी के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइसेस आर द प्राइसेस एट व्हिच द गवर्नमेंट विल सप्लाई फूड ग्रेन्स एट रेशन शॉप्स। अच्छा, दिस प्राइस विल बी लोअर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। मतलब चलो देखो, अगर गवर्नमेंट ने 25 रुपए में अनाज खरीदा है तो सवाल ये आता है कि प्रॉफिट में बेचने का नहीं, तो दे विल बी सेलिंग इट चिल्ड्रन बिलो द प्रोक्योरमेंट प्राइस। मतलब 25 में खरीदा है तो हो सकता है कि वो लोग 25 से नीचे में ही बेचेंगे, क्योंकि दे आल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। फार्मर को अच्छा भाव देके वो लोग फार्मर को खुश करते हैं, तो कंज्यूमर को सस्ते में देके कंज्यूमर को भी खुश करना पड़ता है। अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था बच्चों लोग, ओके, क्या था प्रोक्योरमेंट प्राइस, या फिर उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Minimum support price children is 20 rupees, and government suppose like for example is selling it at 15 rupees। तो सवाल ये आता है कि ये जो डिफरेंस आता है बिटवीन एमएसपी एंड इशू प्राइस, हाउ इज इट मैनेज्ड? इट इज मैनेज्ड थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट में माना जाता है, इट्स लाइक एन एक्सपेंडिचर, राइट? अच्छा, so if you get any question children that will be based on the price policy of the government, so you should be able to frame out this particular answer। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे चैप्टर से बचो, जैसे कि मैंने आपको बोला था नैप 2000, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। अभी एग्रीकल्चरल प्राइसेस के ऊपर भी आपको जब भी आपका एग्जाम रहेगा तो you'll be finding one question on that कि what are these different types of agricultural prices। तो हमने देखा, चलो, we have minimum support price, then we have got स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर एक आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस और एक होता है इशू प्राइस। सो दीज आर द डिफरेंट प्राइसेस which are totally managed and controlled and implemented by the CACP, that is Committee on Agricultural Cost and Pricing। Children, in the coming lecture, I will be explaining to you how administered prices are basically implemented, मतलब इसको implement कैसे किया जाता है and how exactly it is benefiting the farmers। So when we study that out, I think, और फिर एक आंसर पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। तो अपना ये प्राइस पॉलिसी का टॉपिक खत्म होगा फिर। ओके, यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।
See you in the next lecture with a continuation of this topic. Bye everyone. Take care.